Assalamu alaikum everyone. This is another episode of Gold Roti or is the flying solo. Ams is on call और यहाँ पे snowstorm आया हुआ है so she's stuck in the work. So I decided to run it by myself, the show. I'll try my best to cover up for her, but let's see. I have another very dynamic physician with me. I'm going to introduce her, Dr. Anosha Raza. She is a Dow Medical College 2013 graduate, and she did her medical residency from Westchester Medical Center, New York Medical College. And she did her general and interventional cardiology fellowship from Rutgers, New Jersey Medical School. Currently, she's practicing at St. Mary's General Hospital in New Jersey. She's also medical director of cardiac rehabilitation and cardiac CT. She's clinical assistant professor at New York Medical College and Rutgers, New Jersey Medical School. And she also started the cardiac CD program at St. Mary's. So if I keep talking about her, I think episode इसी में पूरा हो जाएगा. Let's welcome her. Assalamu alaikum, Anushya. Walaikum Assalam. Thank you. Thank you for that kind introduction. No, thank you for joining us. This will be helpful, very helpful for our audience क्योंकि मुझे इतने questions लोगों से receive हुए हैं, especially cardiac and lipid disorders, cardiovascular disease and lipid disorders in women. So हमने कहा आज उसको cover करते हैं. So let's dive in. Our topic today is lipid disorders and cardiovascular diseases in women, और particularly हम बात करेंगे preventive cardiology की कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं. Anusha, let's start with heart disease. That's the leading cause of death in women, and still it is under recognized. So, ये gap क्यों है? So gap, there are several reasons for this gap. जितने भी clinical trials होते हैं उनमें ज़्यादातर representation जो women की होती है it's really less. And we have recognized this gap and we are addressing this, but even to this day, it's about still we have women about 30%. So we still have a long way to go. So that's reason number one. Number two, the way we are trained. जैसे हम clinicians हम train होते हैं उसमें भी एक implicit bias होता है because हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि chest pain is a classic symptom, right? But that's not always true. Women present with other symptoms as well. तो इस वजह से भी बहुत miss होता है women में heart disease. And clinicians का अपना bias होता है, right? तो women are really women cardiologists जो especially US में है. Even in US we have they're only like 15%, less than 15% practicing women cardiologists, and interventional women cardiologists is less than 5%. So that's, I would say that's a major reason as well. The third reason would be lack of awareness क्योंकि women they don't realize their own risk factors. उनको लगता है कि hypertension, diabetes या cholesterol disorders are mostly prevalent in men, so it's like their thing. So वो अपना जब तक उनका डायग्नोसिस होता है वो बहुत डिले हो जाता है. तो ये उनको ये अर्ली रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है in order to prevent cardiovascular disease. तो अगर आपका डिले होगा डायग्नोसिस में फिर आपके cardiovascular prevention भी डिले होगा. सही बात है. ओके, दैट्स इज वंडरफुल इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट मैं आपसे ये मालूम करूँगी क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस रिसीव हुए कि स्पेशली प्रेगनेंसी एंड मेन्योपॉज जो होता है उसमें ये लिपिड प्रोफाइल और रिस्क किस तरह अफेक्ट होता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द women आर ईदर प्रेग्नेंट और रिप्रोडक्टिव एज और गोइंग थ्रू मेनोपॉज. राइट. सो प्रेगनेंसी और मेनोपॉज दोनों ही ऐसे एक्चुअली हार्मोनल इवेंट्स होते हैं आपके जिसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल एक्चुअली एलिवेट हो जाता है. तो जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसके अंदर LDL विच इज़ द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन commonly known as the bad cholesterol. So जो वो bad cholesterol होता है और जो triglycerides होते हैं दोनों actually they increase. LDL increase होता है by up to 30% and then the triglycerides go up by 50 to 100%. और इसके एक्चुअली आउटकम्स आपके प्रेगनेंसी पे भी होते हैं और इसके फीटल आउटकम्स भी होते हैं. प्रेगनेंसी में आपका प्री एक्लेम्सिया हाई ब्लड प्रेशर है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये और प्री टर्म बर्थ, ये सब इसके आउटकम्स होते हैं. तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को चेक करना और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में. As far as menopause is concerned, so menopause heralds a lot of metabolic changes in bodies. तो उसके अंदर जब आपका menopause होता है तो आपका body weight increase होता है, आपका abdominal obesity increase होती है,
and insulin resistance goes up. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है एंड आपका जो है लिपिड प्रोफाइल भी इस वजह से चेंज होता है। तो ये सब चेंजेस की वजह से आपका कार्डियोवास्कुलर आपके आउटकम्स जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। Okay, okay. So आप क्या recommend करेंगी being a cardiologist? At what age women should start lipid screening or they should start seriously thinking about prevention? They should start really thinking about it at the age of 20. And I know that sounds really early, but especially South Asian women, उसके अंदर क्योंकि South Asian ethnicity अगर आप latest cholesterol guidelines जो है American College of Cardiology की तरफ से, उसके अंदर South Asian ethnicity is high risk ethnicity. So that is really important. कोई और ethnicity को नहीं, हमारी South Asian ethnicity is considered high risk. और क्योंकि आई डोंट थिंक आपको कोई भी साउथ एशियन पाकिस्तानी कोई भी मिलेगा जो आपको नहीं बोलेगा कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हार्ट अटैक नहीं है। एंड इफ़ यू हैव ऑल ऑफ दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, देन यू शुड रियली स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 checking your cholesterol profile, and then you can go on from there. So, Anusha, iska reason is that the diet, is that the genetics? What do you think is the reason of this prevalence in South Asian society specifically? I think it's a combination of factors, multifactorial है. Genetics has a strong role to play. Especially ये हमारे यहाँ अभी एक lipoprotein A. It's like a new genetic marker that we have worked on in the last 2 decades. There has been a lot of research done on that. और वो भी वैसे ही एक another protein है, जैसे LDL है, वो भी एक protein है, lipoprotein है, जो कि वो कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर। इट्स अ प्रोटीन। इसी तरह लाइपोप्रोटीन ए इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैरीज, लेकिन इसका जेनेटिकली इसका लिंक ज़्यादा है। तो अगर आप लाइपोप्रोटीन ए चेक करें तो वो साउथ एशियन प्रोफाइल, साउथ एशियन एथनिसिटी में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंस है कंपेयर टू दी वाइट पॉपुलेशन या वेस्टर्न पॉपुलेशन से। तो हमारे यहाँ जेनेटिक उसका भी रोल है, हमारे यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसका भी इंक्रीज़ है। और इट हैज़ टू डू विद द डाइट ऑल्सो, लाइक बिकॉज वी हैव अ वेरी हैवी कार्ब based diet. So that also has to do with, and then lack of exercise, stress, all of those things play a role. Okay, good to know. So अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपने बात की, ये कब तक बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली अगर साउथ एशियन वुमेन में देखें, और मेडिकेशन कब नेसेसरी हो जाती है? सो लाइफ स्टाइल चेंजेस हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मैं अपने पेशेंट्स को जब एजुकेट करती हूँ तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन, इट्स अ ट्रायंगल। सो इट्स यू कांट डू वन विदाउट द अदर। तीनों चीज़ें हमेशा आपको साथ साथ होती हैं। लेकिन अगर जैसे कोई यंगर पेशेंट होता है, वो आता है और उसका बॉर्डर लाइन चीज़ें होती हैं, तो मैं हमारा गाइडलाइंस भी ऐसे होते हैं कि यू हैव टू गिव देम अ ट्रायल ऑफ 3 to 6 months ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसके अंदर आपका अग्रेसिव, आप अपनी डाइट चेंज करें, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज पे फोकस करें। लेकिन ड्यूरिंग दोज 3 to 6 months व्हेन दे आर गिविंग देमसेल्व्स अ ट्रायल, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ टेक अ ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर कफ आपके घर पे होना चाहिए, और आप अपना ब्लड प्रेशर एवरी नाउ एंड देन चेक इट। इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली, अगर आपका टॉप नंबर 130 से ऊपर है और बॉटम नंबर आपका 80 से ऊपर है, तो दैट मीन्स दैट यू डू नीड मेडिकेशन। I mean, you're doing everything. You are following a low sodium diet. You are doing exercise. You've lost also weight. But आप फिर भी आप देखें कि आपका consistently 130 से ऊपर है blood pressure, आपका bottom number 80 से ऊपर है, that means you do need medication. लेकिन अगर आप वो डाइट और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि आपको वन मेडिकेशन के बजाय 2 मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, राइट? सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू incorporate डाइट एंड एक्सरसाइज into your routine. फॉर श्योर। और इसमें मैं ये एक ऐड करूँगी, बीइंग अ प्राइमरी केयर, व्हाट आई रिकमेंड माय पेशेंट्स इज़ कि आप रोज़ अपना ब्लड प्रेशर नहीं भी ले सकते ना, तो एटलीस्ट इफ़ यू हैव 2-3 रीडिंग्स इन अ वीक, दैट कैन एटलीस्ट गिव्स एन आइडिया टू द डॉक्टर और आपको भी। Yeah, So yeah, so it doesn't have to definitely. be Yeah. every day, just try to take as much as possible. Yes, I Um, agree. मैं भी यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को। या सो दवाओं की जो बात की,
क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स से भी लोग घबराते हैं? तो स्पेशली साउथ एशियन सोसाइटी में पाकिस्तानी इंडियन वुमेन जो हैं वो दवाओं से घबराते हैं फॉर सम रीज़न। इट्स जस्ट आई थिंक सेम विद माय मॉम, माय एंट्स, Yeah. एवरीवन। Yeah. सो वो उन मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या इतने ज़्यादा हैं कि उसका बेनिफिट कम हो जाए? वो थोड़ा-सा उस पे बताएँगे अनुषा? राइट, सो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही एजुकेट करती हूँ कि हम दवाइयों की उस वक्त तक बात नहीं करते व्हेन अनलेस द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। सो मेडिसिन में हर चीज़ बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क होता है, तो अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है तो वी शुड encourage the patients to take it, because जितनी भी medicines आई हैं, people are now living longer and longer, and that's because of modern medicine. If modern medicine wasn't there, then people wouldn't be living so long, right? So that's one thing. Number two, मैं मतलब जैसे स्पेशली जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, जैसे अटोरवास्टैटिन या लिपिटोर, आई थिंक लिपिगेट, ये सब दवाई जो होती है, इसका तो बहुत लाइक इट हैज़ अ वेरी बैड नेम फॉर, आई डोंट नो, लाइक इट जस्ट गॉट अ बैड पब्लिसिटी फॉर सम रीज़न, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मेडिकेशन, क्योंकि जितने भी कोलेस्ट्रॉल ट्रायल्स होते हैं उन सब में स्टैंडर्ड ऑफ केयर अभी भी statins are the standard of care. यस, इफ़ यू रियली, मैं अपने पेशेंट्स को बस एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप जो साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं उन सब की परसेंटेज एक्चुअली बहुत कम होती है। लाइक अगर आप मसल एक्स भी देखें, सो एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ मसल एक्स, सो आई जस्ट एजुकेट देम दैट व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग इट। एंड अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो you and I are going to see each other every few weeks. I'm going to monitor your liver enzymes. I'm going to talk to you about any side effects. And then if something happens, thank God we live in the era where we actually have alternatives of statins, right? And we can actually go for other therapies. So just because you are scared of something, you shouldn't prevent yourself from getting the benefit of that medication. क्योंकि आप हमेशा, आई थिंक वी फोकस सो मच ऑन द साइड इफ़ेक्ट्स कि हम ना उस दवाई का बेनिफिट भूल जाते हैं। तो यस, इस पे आई थिंक बेनिफिट शुड रियली बी, यू नो, लाइक दैट शुड बी अ वेरी सेंटर्ड कॉन्वर्सेशन। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लास्ट में मैं आपसे बस थोड़े से छोटे से क्वेश्चंस पूछूंगी, लाइक कोई लिपिड मिथ दैट यू थिंक वुड डिसअपियर, यू विश वुड लिपिड में डिसअपियर? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब लोग सोचते हैं कि लिपिड डिजीज जो है ना, इट्स अ डिजीज ऑफ द ओल्डर एडल्ट्स, but actually that's not true. The risk increases with age, but it actually is a disease that affects all ages. कोई भी ऐसा, मेरे पास पेशेंट्स जो हैं, दे गो ऑल द वे फ्रॉम एज लाइक 28 is my youngest patient, all the way up to 96 year old. So it is really, it has a big age bracket. या ये बहुत अच्छी आपने ये बात की है। सो वन थिंग दैट एवरी वुमन शुड नो अबाउट हर हार्ट हेल्थ बाय एज 40? By age 40, you should know about your lipid profile, your lipoprotein A, and your calcium score. और एक लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहेंगी सबको? I will say focus on prevention of cardiovascular disease, like preventive cardiology. If you will focus on that, then hopefully you'll never get a heart attack, stroke, and all those difficult conversations that people don't want to have with their physicians. Okay. Thank you so much, Anushya, for your time. And I am 100% sure कि सब ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगी, आपने जितनी भी एडवाइस की है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है। और स्टे वेल, स्टे वार्म। यहाँ पे एक स्नो स्टॉर्म आया हुआ है हमारी हमारी स्टेट में भी और अनुष्या के भी। सो थैंक यू सो मच। Thank you. Happy to be here. Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।